Dear students, the enemy written by Paul Esberg in fact is a very long lesson. That's why it has been divided into 9 parts so that it would be easy for you to understand. And I hope that all the 9 parts would give you interest of different episodes of an serial. Let's start with the lesson. The writer, Paul Seidensticker-Berg, who was born on June 26, 1892 and died on March 6, 1973, is also known by her Chinese name Tsai Zhenju. She was an award winning American writer who spent most of her time until 1934 in China. Her novel, The Good Earth, was the best selling fiction book in the United States in 1931 and 32 and won the Pulitzer Prize in 1932. In 1938, she became the first American woman to be awarded the Nobel Prize in Literature for her rich and truly epic description of peasant life in China and for her biographical masterpieces. Dear students, Paul Seidensticker-Berg बहुत ज़्यादा समय इनका है तो बेसिकली शी इज़ फ्रॉम अमेरिका बट ज़्यादातर टाइम इनका चाइना में निकला है और इन्होंने चाइनीज़ अपना नाम भी रखा है साई झेंझू 31-32 में इनकी द गुड अर्थ बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई यूनाइटेड स्टेट्स में जिसके लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला और 38 में ये अमेरिका की पहली महिला नोबेल प्राइज़ विनर बनी. Let's begin before we start the chapter, let's understand what in fact secret is behind the lesson. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? ये इस कहानी में एक अमेरिकन प्रिजनर, मैं आपको बताऊंगा भी अमेरिका और जापान की एनिमिस्टी क्यों थी, वाई दे वर एनिमीज टू ईच अदर. अमेरिकन प्रिजनर वॉश्ड होता हुआ इस डॉक्टर के, जापान के एक डॉक्टर के घर के पास आ जाता है. वो वुंडेड था, घायल था. तो एट दैट टाइम देशभक्ति कहती थी कि इसे आर्मी के पास ले जाना चाहिए क्योंकि ये एनिमी सोल्जर था. बट उसका प्रोफेशन कहता था कि इसे पहले सेव किया जाए, बचाया जाए क्योंकि वो वुंडेड था एंड ही नीड हेल्प ऑफ द डॉक्टर. What he ultimately do, that's what would be revealed in the end of the story. Let's begin here. What in fact are the causes of enmity between both the countries? Dear students, Second World War was fought between the forces of Axis and forces of Allies. In Axis, there were the countries Nazi Germany, Italy and Japan. And in Allies, initially the Allies started with Great Britain and France. बट इन 1941 अमेरिका ज्वाइन दैम. तो दो तरह का विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. वो दो तरह की फोर्सेस इकट्ठी हो गई थी. एक तरफ एक्सिस थे, एक्सिस में थे नाजी जर्मन, इटली और जापान. और जो अलाइज फोर्सेस थी उसमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरू किया था. पर अमेरिका उनको मटेरियल सप्लाई करता था. बट जब जापान ने अमेरिका के कुछ हार्बर के ऊपर भी अटैक बम्बार्डिंग की तो 1941 में अमेरिका ने भी डायरेक्ट इनको ज्वाइन कर दिया और वो भी जापान का एनिमी बन गया. Ponder and answer the questions. Here are certain questions before we start the lesson. Do you remember the most famous poem, The Road Not Taken by Robert Frost, which you might have read in 9th or 10th class? You need to remember it. How did the poet take the decision to select a path? That is also relevant to the same point. Have you ever experienced conflicting situations in life? It is up to you people. You need to remember and conflicting situations. And at last, how do you select your choice? Even presently, if you have two choices, what in fact the criteria you think upon before taking the final decision to select a choice? That is here. Let's start the lesson which begins here with the slide. Dr. Sado Hawkins' house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rock well above a narrow beach that was outlined with bent pines. डॉक्टर सैडो हैकी जो जापानीज डॉक्टर थे, इनका मकान जापान के एक सागर के किनारे बना हुआ था जहाँ ये अक्सर खेला करते थे.
और ये मकान स्क्वायर था, वर्गाकार था, कम हाइट का था और चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वो चट्टान जो बिल्कुल तंग सागर के बीच के पास से थी और यहाँ का चारों एयर का एरिया जो था, जो क्षेत्र था, वो पाइन से यानी चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। As a boy, Sado had climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas for coconut. डॉक्टर सैडो भी बचपन में इन पेड़ों को ऐसे ही चढ़ा करता था जैसे इसने दक्षिणी क्षेत्र में कोकोनट नारियल को तोड़ते हुए लोगों को नंगे पांव पेड़ पे चढ़ते हुए देखा था। उसी प्रकार से बचपन के रूप में ये भी इन पेड़ों पर वहाँ पे चढ़ा करता था। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little bear boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future of Japan." उसके पापा अक्सर उसे ले जाया करते थे इन आइलैंड्स के ऊपर और उसको ये बताते हुए कभी फेल नहीं होते थे कि ये जो आइलैंड्स है, छोटी छोटी जो द्वीप टापू है, ये उनका इस देश से यानी कि आगे जाने का स्टेपिंग स्टोन्स है, भविष्य का उनका यहाँ से निर्धारित होगा कि उनको भविष्य में कहाँ जाना है। Where shall we step from them? Sado had asked seriously. Who knows, his father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. वो अक्सर पापा से पूछा करता था कि वहाँ उन स्टेप से, उन द्वीपों से होकर के हमने कहाँ जाना है, और गंभीरता से उसके पापा जवाब दिया करते थे, कहते थे कि कौन जानता है, हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम जापान के लोग इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये पैट्रियोटिक फीलिंग इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आउट ऑफ दिस जेंटलमैन जो इनके फादर थे। Sado had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son, Sado knew that his education was his father's chief concern. सैडो ने इस बात को भी बहुत गंभीरता से अपने दिमाग में लिया था क्योंकि उसके पापा उसके साथ कोई मजाक नहीं करते थे, ना कभी खेला करते थे, और परंतु असीमित दर्द उन्होंने तकलीफें सही थी इस अपने अकेले बेटे के लिए। और सैडो जानता था कि उसकी पढ़ाई उसके पापा का मुख्य उद्देश्य है। वो इसी बात पे चिंतित रहते हैं कि अच्छी पढ़ाई सैडो वहाँ पे कर पाएँ, और यही कारण था दैट फॉर दिस रीजन he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sado become famous not only as a surgeon but as a scientist. और यही कारण था क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत मायने रखती थी पापा के लिए, तो यही कारण था कि 22 साल की आयु में इन्हें अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो वहाँ पे सर्जरी और मेडिसिन डियर स्टूडेंट्स, दो ब्रांचेस होती है मेडिकल साइंस की, शल्य चिकित्सा चेरफाड़ जिसमें आता है और औषधि विज्ञान, तो दोनों पढ़ाई वहाँ पे वो कर पाए। और 30 साल यानी 8 साल की पढ़ाई के बाद 30 साल की उम्र में वापस आ गया था, और इससे पहले कि उसके पापा का देहांत हुआ उन्होंने अपने बेटे को मशहूर सर्जन और वैज्ञानिक बनते हुए देख लिया था, जिस बात का उन्हें एहसास भी था और संभवतः खुशी भी थी कि उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल हो रहे थे। बिकॉज he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with that troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sado was being kept in Japan. क्योंकि उन दिनों डॉक्टर सैडो घाव को किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से साफ किया जाए उसके ऊपर खोज कर रहे थे, और साथ ही उन्हें इसलिए वहाँ पे नहीं भेजा गया था। और साथ ही दूसरा कारण ये भी था कि जो आर्मी के जनरल थे उनका ऑपरेशन हो रहा था और उस वक्त शायद उन्हें दोबारा मेडिकल सहायता की जरूरत पड़े, ऐसी संभावना भी थी, इसलिए डॉक्टर सैडो को वहाँ पे रखा गया था। ये बहुत गंभीर क्वेश्चन भी आपको आएगा डियर स्टूडेंट्स कि डॉक्टर सैडो को वहाँ पे क्यों रखा गया था। उसके दो रीज़न यही थे, जबकि जापान की सारी सेना बाहर गई थी और उसके साथ ट्रूप्स भी भेज दिए, ट्रूप्स के साथ डॉक्टर्स भी भेजे गए थे, बट दो रीजन से इसे वहाँ पे रखा गया था। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had night drawn heavy fog from the cold waves
Shadow watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, writhing around the pines. इस वक्त जबकि सिचुएशन कहने की है, बादल जो सागर में उठ चुके थे, यानी फोग धुंध की तरह से उठ चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अनएक्सपेक्टेड, जिसकी अपेक्षा नहीं थी, ऐसी गर्मी आ गई थी और उसके कारण रात को जो ठंडी वेव्स थी उसके साथ ये फोग उठने लगी थी। और शैडो उस धुंध को देख रहा था जो दूर जाकर के उस द्वीप में थी, उस द्वीप के किनारे पे थी, और धीरे धीरे उस सागर से वो ऊपर उसके घर की ओर और धीरे धीरे संभवतः शायद जो उनके साथ उगे हुए उन पेड़ थे उन्हें भी घेरे जा रही थी वो धुंध। इन ए फ्यू मिनट्स fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. उसे लग रहा था कि धीरे धीरे जो धुंध है वो उसके मकान को रैप होता लपेटना, घेर लेगी, लपेट लेगी, और तब वो अंदर जाएगा अपनी पत्नी हाना के पास, जो अंदर 2 बच्चों के साथ संभवतः उसका घर के अंदर इंतजार कर रही थी। But at this moment, the door opened and she looked out a dark blue woolen houri over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. परंतु उसी क्षण जब ये सोच ही रहा था, अचानक दरवाजा खुलता है और उसकी पत्नी वहाँ से बाहर आती है। उसने नीले रंग का वुलन हॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेटर टाइप की जो है वो किमनू की ड्रेस होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने तिब्बतियन लोगों को भी देखा होगा जो कंप्लीट रैप क्लॉथ होता है उनका, उन्हें किमनू कहते हैं। तो किमनू के ऊपर इसने स्वेटर भी पहनी हुई थी और अफेक्शनेटली ये उसकी बाजू की ओर आती है जहाँ पे वो खड़ा था, परंतु बिना कुछ कहे वो उसकी ओर मुस्कुरा करके देखने लगती है। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. वो हाना को जापान में मिला तो उसे याद आता है, परंतु उसने इससे पहले कोई उससे प्यार करे, उससे प्यार हो, उसने इस बात के लिए पहले प्रतीक्षा भी की कि ये जानने का प्रयास किया कि वो जापान की रहने वाली है या नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके जो फादर थे वो बहुत ही राष्ट्रभक्त थे और किसी भी जापान से बाहर की किसी अन्य जाति की महिला के साथ संभवतः उसकी शादी नहीं करवाएंगे। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. अक्सर उसे वंडर होता, हैरान होना, अक्सर वो हैरान होता था, आश्चर्य उसे होता था कि अगर उससे हाना ना मिली होती जो बाई किस्मत से उसे मिली या कैजुअल वे में बाई चांस उसे किसी प्रोफेसर के घर पे मिली, तो उसे हैरानी होती थी कि अगर उसे हाना उस प्रोफेसर के घर में ना मिली होती तो उसकी पत्नी कौन बनी होती या उसकी शादी किससे हुई होती, इस बात से वो हैरान होता है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. प्रोफेसर और उसकी पत्नी बहुत दयालु थे, बहुत दयालु लिखते थे, या पीपल एंक्शियस का मतलब बहुत दयालु लोग थे, चिंतित रहते थे विदेशी स्टूडेंट्स के लिए, परंतु स्टूडेंट्स जो है वो उनके घर में थोड़े से बोर तो उनके घर में जा कर के होते थे, परंतु उस काइंडनेस को फिर भी एक्सेप्ट वो कर देते थे। Shadow had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Hirely's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. Distance voluble होता है, टॉकेटिंग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव। शैडो अक्सर अपनी पत्नी हैना को बताता है कि जिस दिन उसकी मुलाकात प्रोफेसर हार्ले के घर में से हुई, उस दिन उसके घर में जाने वाला ही नहीं था, पर ना जाने किस भाग्य से वहाँ चला गया। क्योंकि वो क्यों नहीं जाने वाला था, इसके 3 रीजंस यही थे। इसमें क्वेश्चन भी आपको आ सकता है डियर स्टूडेंट्स कि वाई ही वाज नॉट इंटरेस्टेड और वाई फॉरेन स्टूडेंट्स डिड नॉट वांट टू गो टू देयर रूम्स। तो क्या रीज़न थे? एक तो उनका कमरा छोटा था, ऊपर से उनके खाने की जो स्मेल थी वो बहुत अजीब सी आती थी, और सबसे बड़ा कारण था जो उनकी पत्नी थी प्रोफेसर की, बहुत ही वॉल्यूबल थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, और यही कारण था कि उस दिन इस हाना जो नई लड़की उनके घर में उससे मिली, उस वक्त नई स्टूडेंट थी, इसकी मुलाकात नहीं हो सकती थी क्योंकि उनके घर जाने वाला नहीं था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड
on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब वो उसके हाथ को अपने बाजू पर स्पर्श महसूस करता है और उसे इससे आनंद भी होता है। जबकि शादी करके उन्हें 20 वर्ष हो गए हैं, 2 बच्चे भी उनके पास हैं, परंतु उनके दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा इंटीमेसी, इतनी ज़्यादा प्यार है कि अब भी वो एक दूसरे को चाहते हैं। और उन्होंने अमेरिका में हेडलेसली बिल्कुल छुप करके शादी नहीं की थी। जब उनकी मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने चुपचाप शादी नहीं की। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sado and Hannah had talked everything over beforehand. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. उन लोगों ने अपने पढ़ाई अपना अध्ययन दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने वहाँ अमेरिका में जब पूरा कर लिया, उसके बाद वो जापान आए। जापान में पहले डॉक्टर सैडो के पापा ने उसे देखा, उनसे वो मिले, और जब वो संतुष्ट हो गए उस मुलाकात से, फिर उन्होंने जापानी तरीके से उनकी शादी को अरेंज किया। तो इट वाज लव कम अरेंज्ड मैरिज। और सैडो और डॉक्टर हैना ने आपस में सारी चीज़ें शादी से पहले डिस्कस कर ली थी कि उनका वे ऑफ लिविंग कैसा रहेगा। और वो दोनों बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी थे, और इस प्रसन्नता में अभी भी वो बहुत खुश थे। वो अपने गाल को इसकी बाजू की ओर रख देती है। आज इतना पार्टी हम करेंगे। हियर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। Who was Dr. Sado? Where was his house? And the answer, Dr. Sado Hoke was a famous Japanese surgeon and scientist. He completed his study of medicine in America. He lived in a house which was built on the Japanese coast. The house was surrounded by pine trees. The second question is here. Give 2 reasons why Dr. Sado was not sent abroad with Japanese troops. Dr. Sado was not sent abroad with the Japanese troops. There were 2 reasons. Firstly, because the general was ailing and might need an operation and time, and secondly, because Dr. Sado was perfecting a discovery which was likely to render wounds entirely clean. The next question is over here, question number 3 as well as question number 4. Question number 3, why did Dr. Sado and Hannah not marry heedlessly in America? Dr. Sado's father was a downright Japanese traditionalist. He wanted to marry his son with a Japanese girl and in a Japanese way. Dr. Sado also wanted to ensure that whether Hannah belonged to their race or not, he also did not want to disregard his parents. And the last question, why did the foreign students not like to visit Professor House in spite of kindness? Or particularly question could be changed over here, that why Dr. Sado was not interested to go to Professor's house that night. Same would be the answer. The students did not like to visit Professor's house because of the small room, bad smell of food, and talkative nature of his wife. That's all for today. Thank you very much.